الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ کو مسلسل ویڈیوز ملتی جا رہی ہیں تلاوت کے حوالے سے یا بیانات کے حوالے سے. تلاوت کی جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر کافی کمنٹس آپ حضرات کے آتے ہیں، لیکن ایک سوال جو مسلسل پوچھا جاتا ہے وہ سوال میں آپ کو بتا دوں اور اس سوال کا جواب میں آپ کو بتا دوں. اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو بن رہی ہے. سوال کیا پوچھا جاتا ہے؟ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت سانس کو کیسے لمبا کیا جا سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس سے سانس لمبا ہو جائے؟ کیا چیز کھانی چاہیے کہ سانس لمبا ہو جائے؟ ہم پڑھتے ہیں ایک آیت بمشکل سے پڑھتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں. 15 سیکنڈ سے زیادہ ہمارا سانس نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی آیتیں مشکل سے پڑھتے ہیں. تو کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے نا جی ہم اپنے سانس کو لمبا کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کی طرح تلاوت کر سکیں؟ اس حوالے سے 2-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا سانس بھی انشاءاللہ لمبا ہو جائے گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو مرضی کر لیں آپ کا سانس لمبا نہیں ہوگا. سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو تلاوت میں مینٹین کرنے کے لیے مشق کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. روزانہ کی بنیاد پر مشق آپ کا ہونا چاہیے، جسے آپ مشق کہہ لو، جسے آپ پریکٹس کہہ لو، جسے آپ ریاض کہہ لو. ہیں بھئی، وہ انگلش میں کہاوت ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ جو مشق ہوتا ہے، پریکٹس ہوتی ہے، وہ انسان کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز مشق کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ مشق نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں سانس لمبا ہو جائے تو یہ ناممکن ہے. اگر آپ مشق نہیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری آواز میں سریلا پن آ جائے تو یہ ناممکن ہے. اگر آپ مشق نہیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا گلا کھل جائے، یہ ناممکن ہے. مشق کے بعد ساری چیزیں ہیں، مشق سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. مشق سے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا جی آواز کو کھولنا ہے، آواز میں سریلا پن لے کر آنا ہے، سانس کو لمبا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی مشق کے بعد ہیں، مشق سے پہلے نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز سانس کو لمبا کرنے کے لیے وہ ہے مشق ہے. مشق آپ کریں روزانہ کی بنیاد پر. اور مشق میں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مشق کے دورانیے کو آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے جائیں. جتنا آپ مشق کا دورانیہ بڑھائیں گے اتنا آپ کا سانس بھی لمبا ہوگا، اتنا آپ کا آواز بھی کھلے گی، گلا بھی کھلے گا، گلا مضبوط بھی ہوگا، آواز میں سریلا پن بھی آئے گا، خود اعتمادی بھی آئے گی، کانفیڈنس بھی ہوگا. ساری چیزیں مشق کے بعد ہیں اور مشق کے دورانیے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر انکریز کرتے جائیں، بڑھاتے جائیں. تو پہلی چیز جو ہے نا جی سانس کو لمبا کرنے کے لیے بھائی جان مشق ہے. مشق آپ روزانہ کریں. اور دوسری چیز مشق کے بعد دوسری چیز ہے جی مشق کے بعد آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہونی چاہیے، کھانا پینا آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. یاد رکھیں
किसी भी काम में तकरीबन 80% जो रोल होता है वो डाइट का होता है, आपकी खुराक का होता है। खुराक उस चीज़ के मुताबिक आप ले रहे हैं कि नहीं। आप किसी भी लाइन में चले जाएं, क्रिकेट में लाइन में आ जाएं, रेसलिंग की लाइन में आ जाएं, हॉकी की लाइन में आ जाएं, और इसी तरीके से बास्केटबॉल की लाइन में आ जाएं, स्क्वाश की लाइन में आ जाएं, या बॉडी बिल्डिंग की लाइन में आ जाएं, वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, सब चीज़ों में आपका डाइट जो है ना जी वो मेंटेन करना पड़ता है। तो 80% रोल जो होता है किसी भी काम में, याद रखें कि वो डाइट का होता है। तो आप अपनी डाइट को मेंटेन करें। अब डाइट में क्या है? सबसे पहली चीज़, वो सारी चीज़ें आपने बंद करनी है जो आपके गले को नुकसान पहुंचाती हैं। उसमें दो किस्म की चीज़ें होती है। एक वो चीज़ होती है जो डायरेक्ट आपके गले को नुकसान देती है, मसलन कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मिर्चें हो गई, खट्टी चीज़ें हो गई, इमली हो गया है भी, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके गले को नुकसान पहुंचाती है। इस तरीके से ऑयली चीज़ें हो गई, पकोड़े शकोड़े और जनाब चावल हो गया, ये सारी चीज़ें वो हैं जो डायरेक्टली आपके गले को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी चीज़ें वो होती हैं जो डायरेक्टली नहीं पहुंचाती, इनडायरेक्टली आपके जिस्म को, आपके गले को नुकसान पहुंचाती है। वो आपके जिस्म के ऊपर अफेक्ट करती हैं, उस जिस्म की रफ्तार को स्लो कर देती हैं। जिस्म की रफ्तार जब स्लो होती है तो गला भी ऑटोमेटिकली स्लो होता है। तो जब गला स्लो होगा तो सांस की ज़्यादा ज़रूरत होगी और सांस आपके अंदर उतना होगा नहीं। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं जनाब आपकी सारी बादी चीज़ें। गोभी को आप ले लें, आलू को आप ले लें, चावल को आप ले लें, इस तरीके से बर्गर आप ले लें, शवारमा आप ले लें, फ्राई अंडा आप ले लें, चिप्स वगैरह आप ले लें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके जिस्म की ग्रोथ को और आपके जिस्म की स्पीड को ये चीज़ें स्लो कर देती है, क्योंकि ये बादी चीज़ें होती है ना जी, ये चीज़ें स्लो कर देती हैं। तो जब जिस्म की कुदरती रफ्तार स्लो होगी और जिस्म भारी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें भारी हो जाती हैं, जिस्म भारी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका असर आपके गले के ऊपर भी पड़ेगा। तो जब आपके गले के ऊपर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जनाब आपका सांस भी कमज़ोर हो जाएगा, उसकी रफ्तार भी कमज़ोर हो जाएगी। तो डाइट के अंदर ये दो चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर आपका अमल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो रात का खाना है ना जी, या तो कोशिश करें कि रात का खाना आप खाएं ही नहीं। अगर आपने खाना है तो फिर उसको मगरिब के बाद रखें, इशा के बाद नहीं। ये मैं आपको बता दूं, ये बड़ी ऑथेंटिक बात है और बड़ी बारीक बात है और बड़े तजुर्बे की बात है। रात का जो खाना है, जो लोग रात का खाना ज़्यादा खाकर सोते हैं और रात लेट खाकर सोते हैं, ये रात का खाना उनके जिस्म में जाकर बुखारात की शक्ल में उनके पूरे जिस्म के ऊपर जो है ना जी ये असर करता है, और ख़ासकर उसके मुंह के ऊपर असर करता है। और आपको तो पता है तिलावत में एक खासा ज़ोर चाहिए होता है, तो ज़ोर तो वही लगा सकता है जिसके अंदर सारी वेंस जो हैं वो हवा से खाली हों। तो ये खाना जो होता है ना जी, ये सारी वेंस को बंद कर देता है, अंदर जाता है, अंदर जाकर सारी वेंस को बंद कर देता है और आपको जनाब जोर लगाने नहीं देता है। तो इसलिए ये जितने बड़े बड़े कव्वाल हैं, माजरत के साथ जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जितने बड़े बड़े कुर्रा हैं, आप इनके साथ उठे बैठे आपको पता चलेगा कि रात का खाना इनका इंतहाई मुख्तसर होता है, थोड़ा सा होता है, या तो होता नहीं, अगर होता है तो थोड़ा सा होता है, बक़द्र ज़रूरत होता है। तो इसलिए ये है तीसरी चीज़ डाइट के हवाले से, ये ज़हन में रखें कि आपने जनाब रात का खाना जो है ना जी बहुत कम खाना है। चौथी चीज़ डाइट के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि भाई आप जो है इसके लिए एक्सरसाइज करें। ये डाइट में तो नहीं है, बहरहाल ये डाइट से बाहर है, ये एक्सरसाइज में आता है। इसके लिए एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज क्या है? इसके लिए जनाब आप लोगों को भागना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी, जॉगिंग करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। सुबह फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज पढ़कर जनाब आप चले जाएं पार्क में, खुले माहौल के अंदर, जहां आपको ऑक्सीजन साफ मिल सके। रात के लिए भी हो सकता है, लेकिन बेहतरीन टाइम जो है ना जी सुबह फजर पढ़ के, चूंकि हर तरफ माहौल साफ होता है, आबो हवा ठीक होती है, तो आप एक पार्क में जाएंगे, पार्क में जाकर जनाब आप वहाँ दौड़ेंगे, भागेंगे और आपको साफ और फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आपके फेफड़ों को ताज़ी हवा मिलेगी, आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे। तो जब आपके फेफड़े साफ होंगे तो आपका जनाब सांस भी, ज़ाहिर बात है सांस कम होने की वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि फेफड़े के अंदर रेशा होता है, ये सारी चीज़ें आपके सांस की नाली को दबा देती हैं। तो जब आप भागेंगे, दौड़ेंगे, तो जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा होगी, जो फेफड़ा है उसका जनाब रेशा पिघलेगा और साफ ऑक्सीजन आपके फेफड़े में जाएगी, तो आपका सांस बहाल हो जाएगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं सांस के लिए जो मैंने आप हजरात की गोश गुजार कर दी हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह 10 से 15 दिन में आपका सांस का जो लेवल है वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ इस हवाले से मश्क है।
मश्क आप करें। उसके बाद जनाब डाइट है, और डाइट का मैं आपको बता दूं 80% 80% रोल डाइट का होता है। डाइट में कुछ चीज़ें आपको आपके गले के ऊपर डायरेक्ट असर करती हैं, मिर्चें हो गई, ऑयली चीज़ें हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये चीज़ें जो है ना जी आपके गले के ऊपर डायरेक्ट असर करती हैं। कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट असर करती हैं, वो सारी चीज़ें बादी चीज़ें हैं जो आपके जिस्म के स्पीड को स्लो कर देती हैं, जिस्म के अंदर फालतू चर्बी ले आती हैं, जिससे ज़ाहिर बात है आप सांस को अपना लंबा नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं डाइट में। और तीसरी चीज़ जिसका ताल्लुक एक्सरसाइज से है वो ये है कि आप जनाब सुबह के वक्त नमाज पढ़कर फ्रेश माहौल में, जब आबो हवा साफ़ होती है, उस वक्त आप पार्क जाया करें। पार्क में आप चहलकदमी किया करें, भागा करें, दौड़ा करें, और कोशिश करें कि किसी कोने खुदरे में जाकर आप थोड़ी सी मशक भी कर लिया करें ताकि फ्रेश हवा आपको मिल सके। तो ये दो चार चीज़ें हैं सांस को लंबा करने के हवाले से। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका सांस लंबा भी होगा, और आप तिलावत को और कुरान मजीद को इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।